हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं आपको क्या कराने वाली हूँ, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ मॉडल। तो हमारा टॉपिक आज का पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ मॉडल। Growth models. This is the today's topic. चलिए, तो let us start with the first topic. Population growth क्या है? देखो, किसी भी environment में population size is not a static parameter. Population का जो size है, population की जो density है, ये this is population density in any area is not static. कभी भी एक static value नहीं है. This keep on changing and it depends upon which factor. ये बदलती रहती है. अगर ये बदलती रहती है तो ये कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है? सो देन इट डिपेंड्स अपॉन किसके ऊपर? नंबर 1 इज अवेलेबिलिटी ऑफ फूड. किसके ऊपर सबसे ज्यादा जरूरी है? फूड अवेलेबिलिटी. कितना फूड आपके पास में अवेलेबल है? How much amount of the food is available? Second, the environmental condition. Adversity of the environment. That is what? Adversity of environment. अगर एनवायरमेंटल कंडीशन फेवर नहीं कर रही है तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी? चेंज हो जाएगी. एंड अनदर फैक्टर इज प्रेडेशन प्रेशर. दिस इज प्रेडेशन प्रेशर का मतलब है कि इफ अ स्पीशीज इज बीन ईटन बाय द प्रेडेटर्स, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रेडेशन प्रेशर. कि प्रेडेटर्स का क्या रोल है विद रेफरेंस टू दैट स्पीशीज. ठीक है, तो एक प्रेडेशन प्रेशर है कि दूसरे लोग खा जाएंगे, और एनवायरमेंटल फैक्टर है, फूड की अवेलेबिलिटी है. सो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि जो हमारे किसी भी एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी को, पॉपुलेशन रिचनेस को स्टैटिक नहीं रहने देती. इसके अलावा we have more factors other than this. There are certain more factors which fluctuate population density. Other than this, we have what? Birth rate. Then there is death rate. There is immigration, and also emigration. This is emigration. These are the factors which are responsible for fluctuation of a population density in a given area. ठीक है, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि this is what population. अभी हमने पढ़ा कि population density is what, और population density is n. इसको हम n, कैपिटल N से represent करते हैं. किसको? population density. This is your population density in the given area. ठीक है, and you
represent it with what sign? This is n. ठीक है. Now there are certain positive factors and certain negative factors. This is how the population is affected by. For this is natality. Natality, that means birth, and birth add to the population. Birth जो है population को क्या करती है? Add करती है. Other than this, what add to the population? This is immigration. Immigration means some people from other community or other country enters into the vicinity or the community of other. एक जगह से दूसरी जगह में permanently आ गए. ठीक है, उसको हम कहते हैं, this is called what is immigration. This is immigration. You have what? Immigration. Fine. So this also add to the population. Now if there is a death, there will be minus. This is death, or I should write mortality. This is what? The mortality. Mortality is what? The death. It is mortality. Mortality is what? Minus. Now if a population, a part of a population permanently goes away from there, that is called emigration. This is what? This is emigration. There is a little difference in the spelling. This is what? Say for example, some people from India go to US and they take green card from there, or they go to Canada. Some people, they take PR, so they are no more counted from in the population of our country. So they have gone what? Emigrated. Fine. And immigration means some people from other country come to our place. Fine. So the population at a given time, how can we write the population? This is N is the population density. We can say this is what? T is for in the given time, depend upon what? This is your birth rate, this is what? Death, this is immigration, and this is what? Emigration. Fine. So what adds to the population? Birth plus immigration. You have minus, you have this is death plus, I should write it here, death plus. Fine. This is how the population of an area is counted. ठीक है, ये population को हम ऐसे count कर सकते हैं. This is the equation for population. Now, which factor is more important to count what? Population. Out of this, immigration and emigration are not more important. They are not much important parameters as the birth rate and death rate. किसी भी एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट बर्थ रेट और डेथ रेट हैं, और immigration and emigration count less for determining the population density of certain area. But under special condition, अगर कोई special condition हो गई, special habitat loss हो गया, under that condition this immigration and emigrations are important. तो आपको क्वेश्चन भी हो सकता है कि under what condition, कि count the population density of the given area, birth rate and death rate are the important parameters. But under what condition, कौन सी condition में immigration and emigrations are also important parameters to observe or to measure the population density
तो आप क्या आंसर देंगे कि अंडर स्पेशल सिचुएशन। अगर कोई एक स्पेशल सिचुएशन हो गई, सपोज हैबिटेट लॉस हो गया, तो सारी स्पीशीज वहां से चली गई, तो इस समय पॉपुलेशन डेंसिटी को कौन सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है? एमिग्रेशन। और जहां पे जाएगी वहां पर इमिग्रेशन। सो दैट इज अ स्पेशल कंडीशन, यू शुड मार्क इट। फाइन, चलिए, वी हैव स्टडीड अ पार्ट, ये हमने पॉपुलेशन ग्रोथ हमने पढ़ ली। नाउ व्हाट आर द मॉडल टू स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ? ग्रोथ मॉडल। नाउ वी आर स्टडिंग व्हाट? ग्रोथ मॉडल। पॉपुलेशन ग्रोथ किस किस तरीके से हो सकती है? So there are condition, ये your topic is now population growth model. Fine. अब मैं इसको, this is your topic is growth model. ठीक है? अब growth model में there are condition. Condition number 1, if, this is number 1, if resources are unlimited, अगर बहुत सारे हमारे रिसोर्सेस हैं, रिसोर्सेस आर अनलिमिटेड, बहुत रिसोर्सेस हैं, देन ईच स्पीशीज, हर स्पीशीज जो है will have full innate potential to survive and reproduce. If the resources are enormous, unlimited, बहुत सारा फूड, बहुत सारा शेल्टर, सब कुछ है, climatic conditions are favoring, then under this condition each species, each सारी species जो हैं will have what? Highest reproductive potential, will survive with the innate potential for reproduction and also for survival. हर species जो है each species can survive and reproduce. ठीक है? Each species can survive and reproduce with the innate potential, with the innate potential. अपने maximum potential के साथ में वो survive कर सकती है और reproduce कर सकती है. Number 1 point. Then according to the Darwin's theory of natural selection, डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन आपने पढ़ा होगा, तो each species will be under this according to Darwin. डार्विन बहुत बड़े नेचुरलिस्ट हैं. डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, according, this is Darwin theory of natural selection के according each species will be selected by the nature. हर species का क्या होगा? will be selected. Each species will be selected by the nature. Point 1, point number 2. ठीक है? If resources are, अगर हमारे resources क्या हैं? Unlimited हैं, तो हमारी environment में उस particular area में सारी species अपने innate potential के साथ survive कर सकती हैं और reproduce कर सकती हैं. और डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के हिसाब से this environment will select each species. Then each species will grow with the geometric fashion. और हर species जो है, each species will grow what? Exponentially. Will grow exponentially in geometric fashion. This is geometric fashion. Geometric तरीके से हर species जो है
ग्रो करेगी। जियोमेट्रिक इज व्हाट, वेयर ईच ऑर्गेनिज्म कैन मल्टीप्लाई। ठीक है, जियोमेट्रिक और अर्थमेटिक्स आर द टू पैटर्न्स ऑफ द ग्रोथ। तो ईच स्पीशीज will grow what, exponentially, and for exponential growth it has to grow in which order, geometric। ठीक है, देखो हर स्पीशीज का अपना innate potential होगा, हर स्पीशीज को नेचुरल सिलेक्शन मिलेगा, नेचर सेलेक्ट करेगा, एंड इट विल सर्वाइव फॉर व्हाट, बिकॉज इट्स फिट इन द एनवायरमेंट। तो और ईच स्पीशीज विल ग्रो इन विच ऑर्डर, कौन से ऑर्डर में ग्रो करेगी, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर में। और कौन सा ग्रोथ पैटर्न होगा इसका, जियोमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न। एंड इफ आई ड्रॉ द ग्राफ फॉर दिस, और अगर मैं इसके लिए एक क्या बनाऊं, ग्राफ बनाऊं, तो मेरे पास क्या इक्वेशन आएगी, व्हाट विल बी द शेप ऑफ द ग्राफ। ये आपको समझ में आ गया। दिस इज अ कंडीशन, we are studying growth model. If this is a condition, what should be the growth model? Growth का model क्या होगा? Fine. Then under this condition, the growth model will be, देखो हमने कंडीशन क्या क्या बताई है, अनलिमिटेड रिसोर्सेस हैं, सारी स्पीशीज मैक्सिमम पोटेंशियल से सर्वाइव कर रही हैं, और मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है, और नेचुरल सिलेक्शन को फेवर कर रहा है। फाइन, ठीक है, और वो सारी स्पीशीज एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही हैं। देन इफ आई ड्रॉ अ ग्राफ, अगर मैं इसके लिए एक ग्राफ बनाऊं, दिस इज व्हाट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, एंड दिस इज पॉपुलेशन डेंसिटी, population density, and to the population density I write n. The graph obtained, the curve obtained will be this, और इस कर्व को आप क्या कहेंगे, J shape curve. This shows which growth, exponential growth, growth of the population will keep on increasing. This is J-shaped curve, and this is called exponential, ये आ गई हमारी exponential growth, exponential growth curve। ठीक है, where there is never ending, and what should be the density of a population, what we write over here, this is dn upon dt, change in population density with respect to time is equal to, this is birth minus, देखो birth और death तो एक फैक्टर है ही है, ठीक है, birth minus death into what, birth minus death into rn, ठीक है, birth minus death into rn, और this is, ये मैंने आपको डायरेक्ट लिख दिया, I should write this is dt upon dn upon dt is equal to rn. This is what, b minus d into n, ठीक है, n is what, the density of the population, where r is, r क्या है, r is intrinsic r is intrinsic factor, internal factor है, and r is equal to birth minus death, r क्या है, birth minus death, the value of this is what, r। तो population density with respect to time is equal to what, rn, this is b minus, this is what, dn upon dt is equal to rn, and r is a intrinsic factor। r is an important factor for, ये जो r है, r is an important factor, ये जो intrinsic factor है,
जे शेप पॉपुलेशन ग्रोथ में आर इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। आर एक्चुअली है क्या? इंटरनल फैक्टर है। अब देखो पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, चाहे वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, लेकिन बर्थ और डेथ तो हो रही है। तो इंटरनली पॉपुलेशन को कौन इफेक्ट कर रहा है? बर्थ एंड डेथ। So R value is important over here. और B minus D, birth minus death is equal to what? R. Fine. तो सिर्फ यहाँ पे सबसे important parameter क्या है हमारा? R है. So certain R value you have to learn. आपके NCERT में बुक में दी हुई है, तो आप R value को learn कर सकते हैं. R value हम कैसे निकालते हैं? Birth minus death. जैसे कि नॉर्वे में रैट की R value is given. ठीक है, it's value given in your book. It might come for 1 mark exam. तो आप इसको लिख सकते हैं. This is for Norway rat. Norway rat R value is given. This is 0.015. ठीक है. And R value for floor beetle is also given, that is 0.12. And in 1981 for human population R value was calculated, that has come what? 0.0205. So ये जो R वैल्यू है ये क्या डिटरमाइन करती है? हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ को एज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. देखो अगर डेथ्स कम है और बर्थ ज्यादा है तो पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है. अगर हमारी R वैल्यू क्या है? कम है, कम बर्थ है और डेथ ज्यादा है, तो पॉपुलेशन क्या होगी? डिक्लाइन करेगी. ठीक है, तो इसलिए हमारी R वैल्यू क्या है? इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. Fine. Is this clear? To the same. अब ये थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन है जो बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. इसको आप इंटीग्रल फॉर्म ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वी कैन ऑल्सो राइट. इसको हम इस इक्वेशन को, ये जो हमारी इक्वेशन है, इसको हम इंटीग्रल फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की इंटीग्रल फॉर्म. ओनली यू हैव टू लर्न. आपको कोई मैथमेटिकल इसका एक्सप्लेनेशन नहीं करना है. ठीक है, दिस इज व्हाट इंटीग्रल फॉर्म. इंटीग्रल, दिस इज इंटीग्रल फॉर्म ऑफ exponential growth. फाइन. इसको आप कैसे लिखेंगे इंटीग्रल फॉर्म में? यू हैव, दिस इज NT, population in a given time is equal to N0 E raised to the power RT, raised to the power RT. बस आपको ये खाली इक्वेशन याद करनी है कि दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की इंटीग्रल फॉर्म में ये इक्वेशन है. वेयर NT क्या है? दिस इज पॉपुलेशन. ये भी याद कर लेना. पॉपुलेशन डेंसिटी at given time. किसमें? टाइम के साथ में. जब टाइम के साथ हम पढ़ते हैं आफ्टर 1 year 2 year. So this is what the population density after a given time. N0 is equal to population density at 0 टाइम. मतलब जब आपने उसको स्टार्ट करा है. ठीक है, at 0 टाइम, the time when you start counting it. ठीक है, और आपका T क्या है? आपका टाइम है.
आर इज व्हाट? इंट्रिंसिक फैक्टर। आप आर आपको पता है, सो आर आई शुड राइट ओवर हियर। चलिए इसको अब रब कर देते हैं इस इक्वेशन को। नाउ यू शुड राइट आर इज व्हाट? दिस इज इंट्रिंसिक फैक्टर। आर क्या है? इंट्रिंसिक फैक्टर। टी इज ऑलवेज टाइम। और ई क्या है? यू ओनली हैव टू, इसका एक वैल्यू भी दी हुई है, चाहो तो याद कर लेना। वैसे ओनली यू हैव टू राइट दैट इट इज अ बेस ऑफ द लॉग। ठीक है, दिस इज व्हाट? द बेस ऑफ लॉगरिथम। ये लॉग का बेस है। बस जो आपकी ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है, दोबारा से बता रही हूं, इसकी नॉर्मल इक्वेशन क्या है? dn/dt is equal to rn. To the same you can write it on integral form. ठीक है, and this is the equation in which form? Integral form. और ये इसकी, this is what nt stands for, what is n0 stands for. Fine. ये हमने पढ़ा कि this is exponential growth. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब होती है? जब रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की कर्व कैसी होगी? उसकी इक्वेशन क्या है? इंटीग्रल फॉर्म में उसकी इक्वेशन क्या है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो क्या है कि कितने भी रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हों, एक टाइम ऐसा आता है कि रिसोर्सेज हमारे खत्म हो जाते हैं, है ना? ऐसा होता है कि नहीं? देखो जब रिसोर्सेस हमारे बहुत ज्यादा होते हैं तो हमारी जो स्पीशीज है वो फटाफट बहुत उसकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है। और इवन जो हमारे क्या हैं, जो स्लो ग्रोइंग एनिमल हैं, उनका भी पॉपुलेशन बहुत बड़ी ज्यादा हो जाती है। जैसे कि एलिफेंट बहुत स्लो ग्रोइंग एनिमल है, लेकिन उसकी रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल क्या है? बहुत कम होता है, लेकिन उनका भी नंबर एनॉर्मसली बढ़ जाएगा। लेकिन रिसोर्सेस आर नॉट एट द डिस्पोजेबल ऑफ एनी स्पीशीज। कोई भी स्पीशीज इतने सारे रिसोर्सेस को यूज नहीं कर सकती। अर्थ आर नेचर डज नॉट परमिट इट। देखो नहीं तो पॉपुलेशन हमारी क्या हो जाएगी? बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, है ना? तो हमारे रिसोर्सेस क्या है? हमेशा क्या है? लिमिटेड हो जाते हैं। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। आई एम टेलिंग यू द अदर ग्रोथ पैटर्न। एक हमारा दूसरा ग्रोथ पैटर्न क्या है? ठीक है, ग्रोथ मॉडल, द सेकेंड काइंड ऑफ ग्रोथ मॉडल। तो सेकेंड ग्रोथ मॉडल की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि इफ द रिसोर्सेस आर व्हाट? लिमिटेड, है ना? रिसोर्सेस हमारे क्या हो गए? लिमिटेड हो गए। देखो जब हमारे रिसोर्सेस अनलिमिटेड थे तो एक टाइम आएगा ना, चाहे हमारी स्पीशीज बहुत 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 बढ़ जाए। इसके लिए आपकी बुक में एक छोटी सी स्टोरी भी दी हुई है, उसको पढ़ लेना। तो रिसोर्सेस तो हमारे कम हो गए, तो पॉपुलेशन को क्या होगा? इफ द रिसोर्सेज आर लिमिटेड देन व्हाट हैपन? देयर विल बी व्हाट? कंपटीशन। देखो अगर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा 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 है तो स्पीशीज आराम से रह रही है। अगर हमारे रिसोर्सेज क्या हो गए? लिमिटेड हो गए, तो क्या होने लगेगा स्पीशीज में? कंपटीशन। देयर विल स्टार्ट व्हाट? अ कंपटीशन। और जब कंपटीशन होगा, इफ द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो क्या होगा? नंबर वन, देयर विल बी कंपटीशन। ये स्पीशीज क्या करेंगी? एक दूसरे से कंपीट करने लगेंगी। कंपटीशन अमंग द स्पीशीज में क्या होने लगेगा? कंपटीशन। ठीक है, और इवेंचुअली जो स्पीशीज विनर होगी, इवेंचुअली द स्पीशीज विल सर्वाइव, will come out, which will be there for struggle for the existence, survival for the fittest। आपने पढ़ा है। अब नेचर किसको सेलेक्ट करेगा?
जो क्या है हमारी फिट है, इवेंचुअली द फिटेस्ट स्पीशीज, और जब देयर विल बी द कंपटीशन अमंग द स्पीशीज एंड द फिटेस्ट, जो सबसे ज्यादा फिटेस्ट स्पीशीज है, fittest species will survive and reproduce, और उसकी ही पॉपुलेशन क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। आ गए हम नेचुरल सिलेक्शन में। उसके डार्विन ने 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए थे। नेचुरल सिलेक्शन, स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस, दैट इज अ कॉम्पिटिशन, and the survival one will be the one who is a winner. That person will be fit to survive and reproduce. Fine. चलिए, तो लेकिन this species also, the one which is fit to survive, can also grow only up till a limit. वो भी एक लिमिट तक ही ग्रो करेगी. Beyond that it will stop growing. So the species will grow, जो आपकी growth होगी will be limited, or beyond that it will stop, और इस स्टॉप पॉइंट को, बियॉन्ड दैट इट विल स्टॉप. ठीक है, अब यहाँ पे द ग्रोथ विल बी व्हाट, ग्रोथ विल स्टॉप, एंड बियॉन्ड दिस पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट इज, इसको हम, दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, के, दैट इज कॉल्ड व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी. ये इसकी क्या है, कैरिंग कैपेसिटी. This is very important point. No species can grow beyond its carrying capacity. फिर से मैं बता रही हूँ, अगर हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, स्पीशीज में क्या होगा, कंपटीशन, और जो स्पीशीज सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट होगी वो सर्वाइव करेगी, रिप्रोड्यूस करेगी, लेकिन they will stop growing beyond a limit, and that limit, वो जो limit है उसको हम कहते हैं carrying capacity, and is represented by K. ठीक है, K is a limit. ये क्या है हमारी, this K is a limit. ठीक है, और carrying capacity, how can we define carrying capacity? A maximum capacity of an environment to hold a population. किसी भी environment की एक maximum capacity, उससे ज़्यादा यहाँ पर और organism नहीं हो सकते, and this is because of environmental check. ये environmental check जो है population को और आगे नहीं बढ़ने देता. This capacity is carrying capacity. Now if I draw the graph for this, अब इसके लिए अगर हम ग्रोथ का मॉडल बनाएं तो क्या होगा, है ना. we can predict the future population with respect to time by having these model, है ना. तो if I draw the graph for this growth model, what should be the pattern of the graph? This is also an important graph, and this is given, इसको हम Wallace-Paul logistic equation भी कहते हैं, और logistic growth. So I'll draw this for you. ये important है, इसका equation भी पढ़ेंगे हम. This is n, that is population density this side. This is what, time t. ठीक है, अब initially the growth will be slow. Then the growth will become maximum and will become stationary. It has 3 phases. Number 1 phase is called what is lag phase. Number 2 is called what is a log phase, or we also call this
दिस इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट इज एक्सपोनेंशियल फेज. इसको हम और क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल और एक्सेलरेटेड फेज. एक्सेलरेशन हो रहा है. देन दिस लास्ट फेज इज व्हाट? ये हमारी कौन सी फेज है? स्टेशनरी फेज है. दिस इज व्हाट? stationary phase, which represent what? Carrying capacity. And the carrying capacity of this particular environment is this. ये हमारी क्या है? K. K stands for nothing but carrying capacity. तो देखो हमारी जो ग्रोथ कर्व है वो किस शेप में आई है? This is called what is? Sigmoid ग्रोथ कर्व. ये ग्रोथ कर्व क्या है? सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व है. इट्स शेप इज लाइक एस. इट इज ऑल्सो नोन एज वर्ल. दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट इज? दिस इज वर्लिस्ट लॉजिस्टिक. यू हैव टू लर्न दिस करेक्ट नेम. पर्ल. This is logistic growth curve. ठीक है? This is Verlist Pearl logistic growth curve. ठीक है? Verlist आप इसको कैसे भी प्रोनाउंस कर लीजिए. Pearl logistic growth curve और S shape curve. Actually in the environment which growth curve exists? J shape or sigmoid? It is a J shape. J shape curve कर सकती है हमारी? Never. J shape curve तो कब करेगी? जब क्या होगी? हमारे रिसोर्सेज अनलिमिटेड है और ये रिसोर्सेज तो खत्म हो जाएंगे. तो एक्चुअली एनवायरमेंट में कौन सी ग्रोथ कर्व एग्जिस्ट करती है? सिग्मॉइड कर्व. नेवर 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 J shape. ठीक है? दिस ग्रोथ कर्व इज मोर रियलिस्टिक. ये ज्यादा रियलिस्टिक ग्रोथ कर्व है. दिस मॉडल ऑफ ग्रोथ इज मोर रियलिस्टिक इन एनवायरमेंट. दिस ग्रोथ कर्व एग्जिस्ट. ठीक है? और इसके लिए हमारे पास इक्वेशन क्या है? वी राइट. विदाउट इक्वेशन you will not get marks. You have to learn the equation. That is dn upon dt. This is population density per unit time is equal to Rn. R is what? Intrinsic factor. N is what? Density. That is K minus N upon K. This is the equation for logistic growth curve. ठीक है? और इसको हम सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व भी कहते हैं. हमने दो ग्रोथ कर्व के मॉडल पढ़े. एक जे शेप जो अनलिमिटेड रिसोर्सेज में है, और हमने ये भी पढ़ा कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो किसी भी एक ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी नहीं है. सो एवरीबडी यूजेस दैट. ऑल ऑर्गेनिज्म यूटिलाइजेस देम. And in the environment, actually, which growth curve exists? That is sigmoid curve. It is more realistic. With this, I have completed the topic growth models. और मेरे वीडियो को आप पूरा देखना, सब्सक्राइब करना, and wait for my next video. Thank you.